Good morning, students. In this chapter 3rd, classification of elements, we are studying various trends in physical properties. So we have studied about atomic radius and ionic radius. Now, third point we will discuss about ionization and enthalpy. Enthalpy is nothing but energy. It is the quantitative measure of the tendency of an element to lose electron is given by its ionization enthalpy. It represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. In other words, the first ionization enthalpy for an element X is the enthalpy change represented by delta IH for the reaction depicted in the equation 3.1. So if we take a neutral atom, let X, and if we apply an ionization energy on it, it will eject an electron out of this and X will be converted to an cation. The ionization enthalpy is expressed in kilojoules per mole. We can define the second ionization enthalpy as the energy required to remove the second most closely bound electron. It is the energy required to carry out the reaction as shown. तो ये हमने क्या किया कि हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया था न्यूट्रल एटम में से. हम उसको क्या बोलते थे? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब जब ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव बचा, अब हमने इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी यूज़ होगी उसको हम बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. सी है we have taken X positive and we will remove one electron from this. We will get X2 positive, that is it's a cation, and one electron is ejected out of it. Energy is always positive because energy is always required to remove the electrons from an atom. कहते कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है. क्यों? क्योंकि हमें हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है ताकि हम इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल से रिमूव कर सकें. कहते जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है हायर होती है फर्स्ट से, बिकॉज इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन देन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम. तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पॉजिटिव जो केटायन है वो तो सीख करेगा कि उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, बट अगर हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, एंड सेकेंड से ज़्यादा होती है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. राइट, द टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी इफ नॉट क्वालिफाइड इज टेकन एज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. The first ionization enthalpy of the elements having atomic numbers up to 60 are plotted in the figure. In this figure, the elements up to 60 are plotted. I will discuss with you this whole diagram. The periodicity of the graph is quite striking. You will find maxima at the noble gases which has the closed electron shells and very stable electronic configurations. हमने इसमें देखना है जो मैक्सिमा दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं. सी एट द मैक्सिमम ऑफ दिस ग्राफ वी हैव नोबल गैसेस की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है सबसे ज़्यादा है. क्यों सबसे ज़्यादा है? नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड हैं, ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं. राइट, तो स्टेबल एलिमेंट में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से ये मैक्सिमा के ऊपर आते हैं. On the other hand, minima occurs at the alkali metals and their low ionization enthalpy can be correlated with their high reactivity. And if I talk about alkali metals, तो ये minima पे आते हैं like this. Why these are at minima? If you know about the electronic configuration of alkali metals, we have only one electron in its valence shell, and when one electron is ejected out they will get a stable electronic gas configuration. So the ionization enthalpies of these alkali metals are the ionization enthalpy of alkali metals are low because only a little energy is required to eject an electron out of the valence shell. Suppose we have lithium. In the case of lithium, we have in the outer most shell we have only one electron,
and if this one electron is ejected out, we will get a stable configuration, and that is 1s2. And we have to apply only little energy for the ejection of this electron. Hence for all the alkali metals, the ionization energies or enthalpies are very low, and they have high reactivity. Obviously if the electron will eject out easily, it will be having high reactivity. In addition, you will notice two trends. The first, ionization enthalpy generally increases as go across a period and decreases as we descend in a group. So the important trend of ionization enthalpy is that the ionization enthalpy increases across the period. Left to right ionization enthalpy increase करती है, but as we go down the group, the ionization enthalpy decreases. You will appreciate that the ionization enthalpy and atomic radius are closely related properties. We know that ये दोनों जो हमने पहले स्टडी किया, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों क्लोजली रिलेट करते हैं. हमें इन ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए दो फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा. फर्स्ट जो फैक्टर है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस. राइट, हमारे पास सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और आउटसाइड हेयर इन द वैलेंस शेल वी हैव द इलेक्ट्रॉन्स. तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होती है, अट्रैक्शन. सेकेंड फैक्टर क्या है, द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर. ये जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं इनकी आपस में रिपल्शन. तो ये दो फैक्टर्स मेन हमें कंसीडर करने पड़ते हैं. द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी लेस the actual charge on the nucleus because of shielding or screening of the valence electron from the nucleus by the intervening core electron. इस लाइन का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस के साथ जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट. तो ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन से होने नहीं देते. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स, द इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ शील्ड टुवर्ड्स द outermost electron. As a result, the attraction of nucleus to the outermost shell decreases. This is called shielding effect or screening effect. This is what is written over here, that 2s electron in the lithium is shielded from the nucleus by the inner core 1s electron. कि जो लिथियम के अंदर 2s इलेक्ट्रॉन है उसकी शील्डिंग हो गई है न्यूक्लियस से. किसकी वजह से, जो उसके अंदर 1s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इफ़ वी टॉक इन जनरल, द शील्डिंग इज इफेक्टिव एंड द ऑर्बिटल्स इन द इनर शेल्स आर completely filled. The situation occurs in the case of alkali metals which have single outermost ns electron preceded by the noble gas configuration. तो जनरल में हम बात करें तो शील्डिंग उस केस में इफेक्टिव है जब इनर शेल्स जो हैं कम्प्लीटली फिल्ड हों, तभी वो एज अ शील्ड एक्ट करेंगे और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल तक नहीं पहुंचने देंगे. तो ये सिचुएशन एल्कली मेटल के केस में होती है जिसके आउटरमोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है बट उसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. When we move from the lithium to fluorine across the second period, successive electrons are added to orbitals in the same principal quantum level, and the shielding of the nucleus charged by the inner core of the electron does not increase very much to compensate for the increased attraction of the nucleus to attraction of the electron to the nucleus. तो इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि जब हम लिथियम टू फ्लोरीन जाते हैं, हेयर इट इज़ लिथियम एंड हेयर इफ़ वी गो टुवर्ड्स द फ्लोरीन, तो इसमें क्या होता है, हमने क्या बताया कि अगर अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं तो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन है वो कम कर देते हैं ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ शील्डिंग. बट अगर इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे आते जाते हैं तो जैसे इफ़ वी गो फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, तो सेम क्वांटम शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते जाते हैं. तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्डिंग इतना नहीं कर पाते और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. एज अ रिज़ल्ट जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगी
न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन की, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन उतना ही उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा और उतनी ही हमें बाहर से एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हम वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। ठीक है, तो इसकी वजह से जैसे जैसे हम लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती है क्योंकि न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। उसको रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। As we go down a group, the outermost electron being increasingly farther from the nucleus, there is an increased shielding of nuclear charge by the electrons in the inner levels. In this case, increase in shielding outweighs the increasing nuclear charge, and the removal of the outermost electron requires less energy down the group. देखो, अब कहते हैं कि नीचे जाते जाते जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ कर गई। कैसे डिक्रीज़ कर गई? जैसे हम नीचे जाते हैं, सपोज इफ वी टेक दिस एज लिथियम एंड दिस इज सोडियम। लिथियम में क्या था? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पड़े थे और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा था। अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं? 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, राइट। तो इसमें क्या हुआ, जो ये न्यूक्लियस है उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन है कम हो गई, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स ने, इनर इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस बाहर वाले न्यूक्लियस तक पहुंचने नहीं दी। मीन्स इसमें शील्डिंग इफेक्ट वर्क कर रहा है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो गए हैं, राइट। तो इसकी वजह से हम जब बाहर से एनर्जी अप्लाई करेंगे ये इजीली निकल जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है ही नहीं। तो नीचे जाते जाते क्या होगा, जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट वर्क करेगा इनर इलेक्ट्रॉन्स का, और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें कम अप्लाई करनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक एनॉमलस बिहेवियर है बिटवीन बेरिलियम एंड बोरॉन। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो हमने बोला है कि लेफ़्ट टू राइट जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। मीन्स बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, बट ये ट्रेंड अपोजिट है। होता क्या है, बोरॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बेरिलियम से थोड़ी ज़्यादा होती है। सॉरी, आई हैव रिटन द सेम ट्रेंड। मैंने बोलना था दैट बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बोरॉन से ज़्यादा होती है। दिस इज़ एन एनॉमली। So when we write the electronic configuration of both these elements, in beryllium we has 1s2, 2s2, and in boron we has 1s2, 2s2 and 2p1. Here in boron the last electron enters in p subshell of the valence shell, but in beryllium the last electron enters in s subshell of the valence shell. As the result, in boron the p valence electron is shielded from the nucleus and hence require less energy to get ejected from the outermost valence shell, and hence the boron has lesser ionization enthalpy as compared to beryllium. We have one more anomaly over here, that is between nitrogen and oxygen. Study about the reason for nitrogen and oxygen anomalous trend, and give me an assignment related to this. You have given a question that is problem 3.6. Try to solve this also and explain me this in the Zoom class. Thank you. This is over for the today's topic. In next topic we will discuss about electron gain enthalpy.